My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some DI sets for XAMT examination. And you can either download the PDF from Telegram channel Mathological or directly watch the solutions. Directly watch with practicing in parallel. Okay, start karte hain. So pause the video and try to solve it. A professor keeps data on students tabulated by performance and sex of the student. The data is kept on a computer disk, but unfortunately some of it is lost because of a virus. Only the following could be recovered: the performance for male and female, average, good, excellent, 3 grades, and total number of students. Okay. So panic buttons were pressed, but to no avail. An expert committee was formed which decided that the following facts were self-evident. Half the students were either excellent or good. And the total number of good students plus total number of excellent students, this must be equal to half the total students. Or we can say that total number of excellent students plus total number of good students, this must be equal to total number of average students. Is that it so? Because total का half होगा average students और half होगा good plus excellent students. 40% of the students were female. 40%, which is 2 by 5, are female. और total females are given as 32. ठीक है. So अगर total number is x, तो 2x by 5, this is 32. And hence x will be equal to 80 and the total number will be 80. Total students will be equal to 80. And if total is 80, females are 32. So males will be 48. And out of total, half of students are excellent and good. So half are average. Average number will be 40. Out of 80, 40 must be average students. Additionally, 1/3 of the male students were average. So total male students are 48. 1/3 of them, which is 16, are average. So 16 male students are average. Total average students are 40. So 24 average students must be females. Okay. Clear? Additionally, 16 are average, 10 are excellent in males. So 16 plus 10, 26. Remaining 22 must be good. Total good is 30. So 8 are remaining, which must be females, which are good. And total females are 32. 24 plus 8 is 32. So excellent females must be 0. So total excellent students will be 10 plus 0 equal to 10. सारा डेटा हमारा फिलअप हो गया. Question number 1. How many students are both female and excellent? तो female and excellent is equal to 0. So there are no female excellent students. Option A will be the answer. Second question. What proportion of good students are males? So total good students are 30, males are 22. So 22 by 30 will be right answer, which will be 0.7 something. So 0.73 के आसपास वैल्यू आएगा. Option B will be the answer. Clear? Next set. The table gives the national income and the population of a country for the years 1984 to 85 to 1989-90. 1984-85 से start करके 1989-90 तक का data given है for national income in rupees crores and population in rupees crore, population in crores. Question number 1 from the set. The increase in per capita income compared to previous year is lowest for which of the following years? Increase in per capita income compared to the previous year. So हमें given है national income, per capita income नहीं given है. Per capita income क्या होगा? Per capita income will be national income divided by population. So ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके. अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बहुत एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है. तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए 229,225 रुपीज क्रोर्स डिवाइडेड बाई 74 क्रोर्स. तो 229,225 डिवाइडेड बाई 74 करोगे. रफली दिस इज 74 इंटू 3. 75 इंटू 3 होता है 225. तो रफली 3 टाइम्स है, यानी 3000 टाइम्स होगा कि 229,225 डिवाइड बाई 74. दिस इज रफली, एक बहुत रफ एस्टिमेशन इज 3000. isn't it so? 3000 के आसपास की वैल्यू है. और सिंस दिस इज 74 इंटू 3 हो जाएगा 222 और प्लस 7000 समथिंग, यानी कि दिस इज रफली 3100. तो पर कैपिटा इनकम दिस विल बी रफली 3100 फॉर 1984-85. ओके. क्या ये बात क्लियर है?
3100 विल बी द वैल्यू. नेक्स्ट 1985-86 के लिए 75 इज पॉपुलेशन, 261,174 दिस इज नेशनल इनकम. तो 261,174 डिवाइड बाई 75, 75 इंटू 3 इज 225 और 225 प्लस 40 इज 265, तो 225 प्लस 36. सो दिस विल बी रफली 4.8% है कि नहीं, या 4.8%. तो दिस विल बी रफली 3480. Population in 1985-86 will be 3480. Per capita income will be 3480. 1986-87 में 291,556 divided by 77. Now 77 into 3 that is 231. तो 30% is 231. 77 का 3 times है 231, ठीक है, 300% हो जाएगा 77 का 231. और दिस इज 291, तो प्लस 60 है, तो ऑलमोस्ट 7% मोर, तो 3700 के आसपास की वैल्यू आएगी. 3700 समथिंग. Isn't it so? Clear? Okay. Next 78.5 in 1987-88 और नेशनल इनकम इज 329,934. तो डिवाइड करोगे 78.5 से, 4 टाइम्स जाएगा क्या, 78.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 70 इंटू 4 280, 8.5 इंटू 4 34, तो 314 आएगा, उससे भी ज्यादा है इनफैक्ट. सो रफली दिस इज 4,200. क्वेश्चन ऑफ आस्किंग इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लोएस्ट कब होगा. तो इंक्रीज इज रफली ऑफ 380 फ्रॉम 1984-85 टू 85-86, और नेक्स्ट ईयर में आ रहा है हमारा रफली इंक्रीज आ रहा है 220 का. सो मच लेसर देन 85-86. तो 86-87 कुड बी द आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है. और फिर नेक्स्ट इंक्रीज है 87-88 में अराउंड 500, थोड़ा कम ज्यादा बट अराउंड 500, तो डेफिनेटली दिस कैन नॉट बी द आंसर. लास्ट वैल्यू चेक करना है हमें 89-90 के लिए. सो 88-89 में वैल्यू क्या आ रहा है, डिवाइड बाई 80 कर रहे हैं, ठीक है. 84 320, फिर बच रहा है 68, तो 48.5 या 4850, दिस शुड बी द नंबर अप्रॉक्सीमेटली. और लास्ट वैल्यू 81.5 को डिवाइड कर रहे हैं 433,500 से, तो 5 टाइम्स वैल्यू होगा 81.5 इंटू 5. तो दिस कैलकुलेटिव क्वेश्चन डेफिनेटली. और एग्जाम में अभी हम बाद के क्वेश्चंस तो देखेंगे, जब भी कभी ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो पहले उस सेट के बाकी क्वेश्चंस देख लो, क्या बाकी क्वेश्चंस डुएबल हैं, इजी हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि किसी सेट में एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन माइट बी कैलकुलेटिव, अदर क्वेश्चंस विल बी स्लाइटली इजियर. सो उन क्वेश्चंस को डन करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है. सो 81.5 इंटू 5 दिस विल बी 407.5, और उससे एक्स्ट्रा कितना है, दिस इज 26 एक्स्ट्रा, तो रफली 3% एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा. सो दिस विल बी 5300 अप्रॉक्सीमेटली. ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज. और यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 450 एक्स्ट्रा. तो मिनिमम वैल्यू हमें मिनिमम एडिशन मिल रहा है इन केस ऑफ 86-87, दैट इज मिनिमम वैल्यू. क्लियर है, ठीक है. आगे बढ़े. अच्छा, ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि देखो फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू निकाल लिया, डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा है, ऑप्शंस कैसे हैं. देखो हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1984-85 के लिए वैल्यू निकाल लिया, पर कैपिटा इनकम 3,100. नाउ फ्रॉम 84-85 टू 85-86 पॉपुलेशन में इंक्रीज आया 1 करोड़ का, 1 CR का. बट नेशनल इनकम इंक्रीज कितना है हमारा, रफली 229-225 था और 261 हुआ है, यानी कि दिस इज रफली 32 करोड़ ज्यादा है, 32,000 करोड़ ज्यादा है, ठीक है, 32,000 करोड़ ज्यादा है. सो अगर एवरेज उतना ही सेम रहता हमारा, एवरेज अर्ली वाज 3,100, उतना ही एवरेज हमें रखना होता तो 1 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए द इंक्रीज इन नेशनल इनकम शुड हैव बीन रफली कितना इंक्रीज होना चाहिए था, उतना ही एवरेज के हिसाब से, इसलिए 3,100 करोड़ होना चाहिए था. बट एक्चुअल इंक्रीज आया हमारा 32,000 करोड़ का, विच इज वेरी एक्स्ट्रा कंपेयर टू 3,100 करोड़. सो 32,000 करोड़ का इंक्रीज आया, सबट्रैक्ट 3,100 CR. सो बच कितना जाएगा, बच जाएगा हमारा रफली 28,900 CR. So this will be distributed in the complete population 75 crores में.
और वही हमारा इंक्रीमेंट होगा 28900 डिवाइड बाई 75, इजंट इट सो? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द ईयर्स? पर कैपिटा इनकम किस ईयर के लिए हाईएस्ट होगा? तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज हाईएस्ट फॉर द लास्ट ईयर 1989-90। दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, क्योंकि जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है नेशनल इनकम में। पॉपुलेशन इंक्रीज तो 1% और 2% और 1.5% इतना ही हो रहा है, बट नेशनल इनकम में इंक्रीज आर ह्यूमंगस, इज ह्यूमंगस 229,225 से 433,500, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली नेशनल इनकम हमारा डबल हो गया, डबल के आसपास हो गया, बट पॉपुलेशन में इंक्रीज आया 74 से 81.5, यानी कि ओनली 10% का। तो डेफिनेटली लास्ट ईयर में द पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट, कंसिस्टेंट इंक्रीज है, दैट इज वाई। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of increase in population was lowest in which of the following years? Rate of increase in population rate of increase कब lowest है? So 74 to 75 there is only increase of 1 CR, बाकी सारे years में increase is greater than 1 CR, 1 crore, isn't it so? और total increase बहुत ज़्यादा नहीं है, so definitely lowest increase आ रहा है when the population increasing by 1 crore, base is 74, बाकी किसी भी years में 1 crore का increase नहीं, यहाँ पे 2 crores का increase है, 1.5 and 1.5. So this is minimum in terms of base as well as percentage. So और percentage में हमें निकालना है rate of increase in population. So answer will be 1985-86. Option A will be the answer. ठीक है. Next set. The pie chart below provides the information regarding the monthly expenditure of two families on various items. A total monthly expenditure of family A is rupees 12,500 and the total monthly expenditure of family B is rupees 17,500. So the first question is, the monthly expenditure of family A on education is approximately what percent of the monthly expenditure of family B on education? So what should be the approach? देखो फैमिली ए और बी का हमें मंथली एक्सपेंडिचर का वैल्यू गिवन है और उसी का पाई चार्ट भी गिवन है। फॉर फैमिली ए द वैल्यू इज 12,500 रुपीज एंड फैमिली बी के लिए द वैल्यू 17,500। और सिंस हमें वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना परसेंटेज में, तो रेशियो निकाल लो, ये 2 0 से 2 0 गए, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, तो 5:7 का रेशियो आ गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो इज 5:7। नाउ फैमिली ए का एजुकेशन में एक्सपेंस कितना है? दैट इज 12%। 12% है, तो 12% ऑफ 5, ठीक है, 12% है, 5 कर लो, 500 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली एजुकेशन का एक्सपेंस फॉर फैमिली बी दैट इज ऑल्सो 12%, तो दोनों के लिए सेम परसेंटेज है, 12% ही है, तो रेशियो अल्टीमेटली 5:7 ही आएगा, ठीक है। एजुकेशन का भी रेशियो 5:7 ही आएगा बिकॉज परसेंटेज सेम ही है, 5 का 12% और 7 का 12%, रेशियो विल बी 5:7 ओनली बिकॉज परसेंटेज वैल्यू सेम। और क्वेश्चन पूछ रहा है मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली ए ऑन एजुकेशन इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी? तो बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू इज फैमिली बी, तो 7 का 5 इज हाउ मच परसेंट? तो दैट विल बी 5/7%, विच विल बी 71.43%, बिकॉज 1/7 क्या होता है? 14.28%। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 71.43% विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the monthly income of family A is same as monthly income of family B, तो monthly income of both families is same. Okay. Family A saves 50% of his monthly income, while family B saves what percent of their family income? तो saving 50% है, remaining is expenditure, और expenditure की वैल्यू हमें given है। तो if expenditure of family A is 12,500 rupees और 50% सेविंग है, तो दिस विल बी 50% ऑफ इनकम, तो एक्सपेंडिचर 12,500 है, तो इनकम विल बी इक्वल टू 25,000 रुपीज एंड दैट विल बी सेम एज इनकम ऑफ फैमिली बी, दैट इज ऑल्सो 25,000 रुपीज, और इनकम ऑफ फैमिली बी इज 25,000 रुपीज, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी इज 17,500 रुपीज, दिस इज 70% ऑफ इनकम, तो 30% मस्ट बी सेव्ड, 70% एक्सपेंडिचर, 30% वुड बी सेविंग। Option B will be the answer. Clear? ठीक है। Next one, the expenditure on traveling
by both families together is approximately what percent of the expenditure on house rent by both families together. अगेन हमें चाहिए परसेंटेज में ही मामला, तो मान लिया हमने कि इनकम का रेशियो क्या है, ए और बी का, एक्सपेंडिचर का रेशियो, सॉरी इनकम का नहीं बिकॉज एक्सपेंडिचर का डेटा गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:7 का, ओके या मान लेते हैं 500-700 बिकॉज परसेंटेज लेना है अल्टीमेटली में. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग बाय बोथ फैमिलीज टुगेदर, तो ट्रैवलिंग में फॉर फैमिली ए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 16%, तो 16% ऑफ 5 विल बी 80. हमें अल्टीमेटली रेशियो ही चाहिए इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो हम 500-700 में कैलकुलेट करते हैं. 16% ऑफ 500 दैट विल बी 80 और 19% ऑफ 700, 19 into 7, 19 5 95 आ गया ये वैल्यू 133. ट्रैवलिंग का वैल्यू आ गया 80 यूनिट्स और 133 यूनिट्स. यूनिट्स में है, एक्चुअल रुपीज़ में नहीं है. और फिर बात कर रहा है एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट बाय बोथ फैमिलीज टुगेदर, तो हाउस रेंट पे percentage for family A is 24%, 24% of 500 that way 120, 24 into 5 120 और 18% of family B, तो 18 into 7 126. So total expense on traveling is what percent of total expense on house rent? तो traveling का वैल्यू आ रहा है 80 plus 133 that is 213 units और हाउस रेंट पे आ रहा है 246. तो रफली दिस इज 7/8 कि बहुत क्लोज वैल्यू है, यानी 87.5 से स्लाइटली लेसर वैल्यू आ रहा है बिकॉज दिस इज 33 लेसर, ठीक है. सो अप्रॉक्सीमेटली 7/8 से छोटा वैल्यू आएगा, 87.5 से क्लोजर वैल्यू आएगा. 80% विल बी अप्रॉक्सीमेटली, जरूरत नहीं है ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन सी शुड बी द आंसर. 80% तो डेफिनेटली नहीं है, 81.81 भी नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके क्लियर. Next question. If the expenditure of families are combined together, then expenditure on traveling of both families together will be what percent of total expenditure of both families? Again, similar question. So both families का if we combine the expenditure, ratio है 5:7. तो expenditure on traveling of both families together. तो traveling का 16% और 19% है, ऑलरेडी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है 80 and 133. which becomes 213. तो 213 divided by 1200. 200 by 1200 कितना होगा? This will be basically 200 by 1200 plus 13 by 1200. 200 by 1200 1/6 यानी 16.67% और this is roughly 1%. 17.75% will be the answer. Option B. 17.75%. Clear? Next question. The graph below shows the demand and production statistics of 5 TV companies. What is the difference between the average demand and average production of the 5 companies taken together? Difference between average demand and average production of 5 companies taken together. So this is for, data is for 5 companies, total 5 companies है, तो average हमारा क्या होगा? Average will be number of observations. तो sum of observations divided by number of observations. और number of observations तो दोनों ही केसेस में सेम होगा. तो average और demand और एवरेज ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस क्या होगा? तो डिमांड का एवरेज और प्रोडक्शन का एवरेज का डिफरेंस. एवरेज और डिमांड क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिमांड वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन और एवरेज ऑफ प्रोडक्शन विल बी सम ऑफ प्रोडक्शन वैल्यूज डिवाइड बाय एन. सो बेसिकली दिस विल बी सम ऑफ डिमांड माइनस सम ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एन विच इज इक्वल टू 5 इन दिस केस. एन इज इक्वल टू 5. डिमांड का सम कर लेते हैं. डिमांड वैल्यूज का सम क्या आएगा हमारा? 3000 प्लस 600 3600 प्लस 500 4100 plus 2000 6100 7300 10600 10600. This is total sum for demand. And for production 1500 plus 1800 3300 plus 1000 4300 plus 700 5000 plus 2000 7000 9200. So difference is 1400. तो एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 280. सो आंसर विल बी 280. ओके अच्छा, एनी सच क्वेश्चन यहाँ पे देखो स्ट्रेट अवे था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें. बट कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में मेंशन हो कि दीज वैल्यूज आर इन लैक्स. ओके दीज वैल्यूज आर इन लैक्स, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, डेफिनेटली हो सकता है. इन लैक्स ये वैल्यूज गिवन है और ऑप्शन में एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पे लेट अस से ऑप्शन ई गिवन हो नन ऑफ दीज.
भाई 5 ऑप्शन तो नहीं होंगे, बट फोर्थ ऑप्शन में ही मान लो नन ऑफ दिस गिवन है, और यही ऑप्शंस गिवन है एग्जैक्टली। तो ध्यान ये रखना है कि क्योंकि ये वैल्यूज लैक्स में है, तो जो डिफरेंस आया हमारा दैट विल आल्सो बी इन लैक्स, यानी कि एक्चुअल वैल्यू फिर आ जाएगा 280 लैक्स एंड नॉट 280। तो 280 विल नॉट बी द आंसर, ऑप्शन ई विल बी द आंसर इन दैट केस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसी गलतियां होती हैं और ऐसा फंसाने को दे देते हैं कि डेटा हमेशा ध्यान देना है कि किन वैल्यूज में, यूनिट्स क्या है उसकी, एब्सोल्यूट है या लैक्स में है, करोड़ में है, थाउजेंड में है, अकॉर्डिंगली आंसर होगा हमारा। तो डिफरेंस भी जो आएगा हमारा दैट विल आल्सो बी इन दैट सेम यूनिट ओनली। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the pie chart below gives the expenditure incurred in printing a magazine. For a given issue of the magazine, the transportation cost is rupees 48,000. If the print run is 12,500 copies, what should be the sale price per unit if the publisher desires a profit of 5%? पब्लिशर को प्रॉफिट कितना चाहिए? 5% का प्रॉफिट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन एज रुपीज 48,000 एंड टोटल प्रिंट रन कितना है हमारा? 12,500 कॉपीज है, उनके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज बेसिकली 4%। एज पर द पाई चार्ट दिस इज 4%। तो हमें 4% कॉस्ट की वैल्यू गिवन है एंड 4% कॉस्ट इज इक्वल टू 48,000 रुपीज। 4% ऑफ कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू 48,000 रुपीज। So 1% of cost will be 12,000. So total cost will be equal to 12 lakh rupees. This will be total cost. And publisher desires a profit of 5% in total. 5% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? सो प्लस 5% ऑफ दिस वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स क्या होगा? टोटल रेवेन्यू या टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कॉपीज दैट विल बी प्लस 5%, और 5% कितना होगा? 12 लाख का 5%, 12,000 is 1%, 60,000. So 12,60,000 will be total selling price, and hence sale price per unit will be 12,60,000 divided by 12,500. So this is 12,600 divided by 125, roughly 100 से थोड़ा सा slightly higher value आएगा, 100 प्लस आएगा वैल्यू। आंसर will be option D, ठीक है? अदरवाइज वी नो कि 12,600 डिवाइड बाई 125 है, तो हम लिख सकते हैं 12,600 को 12,500 प्लस 100 डिवाइड बाई 125, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट तो हमें वैल्यू दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है 100, तो 100 प्लस 100 बाई 125 विच इज 0.8, तो 100.8 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph below shows the end of the month market values of 4 shares for the period from January to June. End of the month market values of 4 shares for the period from January to June. Question is, which share showed the greatest percentage increase in market value in any month during the entire period? Greatest percentage increase. Increase कब होगा? जब हमारा slope positive होगा. This is increase in the price of share. Months का डेटा गिवन है और ये हमें वैल्यूज गिवन है प्राइस का, शेयर प्राइस का, शेयर प्राइस इन रुपीज। ओके, सो दिस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज होगा हमारा जब ये वैल्यू नेगेटिव स्लोप होगा। So since we are only concerned with greatest percentage increase, so we are only concerned with positive slope data points. So for example, this is the positive slope. और परसेंटेज इंक्रीज तब ज्यादा होगा जबकि बेस वैल्यू भी हमारा स्मॉलर हो, यानी लेसर इज द प्राइस, स्मॉलर इज द इनिशियल प्राइस, बेस प्राइस, हायर विल बी परसेंटेज इंक्रीज, isn't it so? This is also positive, but between these two, base price is almost same, but slope में बहुत फर्क है, this slope is much higher, so यहाँ पे प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डेफिनेटली ज्यादा होगा, ठीक है? क्या बेस वैल्यू आ रहा है? दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सिमेटली 95 and this value here is 115. So from 95 to 115 there is an increase of 20 on the base of 95, 20 by 95, 20 by 95, which is 4 by 19. So 19 to the 38, this is roughly 2.0 or 21%, 2.1, 21%. 20% would have been 3.8 by 19, 21% approximately होगा। अब इसको चेक करने की जरूरत है, यहाँ पे डेफिनेटली हमारा जो परसेंटेज वैल्यू होगा दैट विल बी मच लेसर बिकॉज स्लोप हमारा स्टीप नहीं है और बेस वैल्यूज अप्रॉक्सिमेटली सेम। फिर भी कैलकुलेट करना हो तो दिस वैल्यू इज 100 एंड दिस वैल्यू हियर इज 110, सो 10 by 100 10% आ रहा है वैल्यू। ओके, फॉर एंड दिस वाज फॉर शेयर ए। फॉर शेयर बी बहुत
हल्का सा स्लोप है, ठीक है, इंक्रीज है बट देयर इज वेरी स्लाइट इंक्रीज, सो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है। डेफिनेटली आंसर हमारा ऑप्शन बी के लिए तो नहीं होगा, बिकॉज उससे भी कम बेस वैल्यू पे हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। बात करते हैं फॉर सी, शेयर सी। तो फॉर शेयर सी दिस इज द पीरियड जहां पे इंक्रीज आ रहा है, दो स्लोप इज नॉट वेरी हाई, बिकॉज डेफिनेटली फॉर शेयर डी द स्लोप इज हायर फॉर दिस रीजन एंड दिस रीजन में ऑल्सो स्लोप इज देयर, बट सिंस बेस वैल्यू सेम है बट स्लोप कम है, तो आंसर के लिए हम चेक करेंगे इस रीजन को ओनली। क्या वैल्यू आ रहा है, दिस बेस इज 40, इनिशियल प्राइस इज 40 एंड फाइनल प्राइस इज 50 आ रहा है, सो देयर इज अ चेंज ऑफ देयर इज अ चेंज ऑफ 10, बेस 40 है यानी कि चेंज आ गया इफेक्टिवली 25%, तो परसेंटेज चेंज इज हाईएस्ट फॉर शेयर डी। क्लियर है। यहां पे दो तरह की गलती होने का स्कोप था, एक गलती होने का स्कोप यह था इंस्टेड ऑफ परसेंटेज तो एब्सोल्यूट चेंज को देख लेते और अकॉर्डिंगली मार्क कर देते। सेकंड गलती हो सकता था कि ए बी सी डी तो प्रेज्यूम कर लेते, जबकि साइड में स्ट्रेट अवे मेंशन्ड है कि डी इज द वन एट द बॉटम एंड ए इज द वन एट द टॉप, तो वहां ऑर्डर में गड़बड़ी हो सकता था। ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए एग्जाम में डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, और सारी वैल्यूज को चेक करने की जरूरत भी नहीं, हमें किसको चेक करना है, सिर्फ इंक्रीज को। इंक्रीज में भी कब, जहां पे स्टीप स्लोप है हमारा, एडिशनली बेस लो है, because lower the base higher will be percentage change. Okay, next case, next question, in which month was the greatest absolute change in market value for any share is recorded? Greatest absolute change, so अब हमें परसेंटेज चेंज नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट चेंज चाहिए। एब्सोल्यूट चेंज कब आया है, जहां पे कि डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो डिफरेंस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ दिस चेंज, सो दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में चेंज आया है, फ्रॉम 20 का चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ 20 रुपीज, so this will be the answer, option A will be the answer, March month में highest change is there, isn't it so? ठीक है, next question, an individual wishes to sell one share of C and one share of D to buy one share of A at the end of the month. At which month end would the individual's loss from this decision due to share value changes the most? Individual's loss कब होगा, क्या इंटेंट है इंडिविजुअल का, ही इज गोइंग टू सेल वन शेयर ऑफ सी एंड वन शेयर ऑफ डी, तो ही इज सेलिंग वन शेयर ऑफ सी प्लस वन शेयर ऑफ डी एंड इंस्टेड ही इज परचेजिंग वन शेयर ऑफ ए। तो इन दिस होल ट्रांजैक्शन इफ देयर इज जीरो नेट investment from the side of individual, then there is no profit, no loss. If individual has to additionally invest some money to purchase one share of A, then that is a loss, because एक सेल किया C का, एक सेल किया D का, बट A का परचेज करके और एक्स्ट्रा अमाउंट अगर लगाना पड़ेगा, so that is a loss. If instead after selling one share of C and one share of D, some extra amount is remaining, even if you purchase one share of A, then that extra amount that is remaining will be profit. तो तीन केसेस है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं सारी वैल्यूज को। तो फॉर जनवरी सी एंड डी आर द बॉटम मोस्ट, ठीक है, और टॉप पे है अपना ए। ओके, सो फॉर जनवरी वैल्यू 40 इज द वैल्यू फॉर शेयर ए एंड 60 इज द वैल्यू फॉर शेयर बी, while share value for A is 100. For February, this value is 50 and 55, and here the value is 95. For March, तो डेफिनेटली जनवरी में तो मामला नेट टू नेट है, 40 plus 60 is 100, this is also 100, so there is a no profit no loss वाला सी। For February, 55 plus 50 is 105, this total is 105, so 105 rupees are received after the sale, but 95 rupees are invested, तो प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, because 105 rupees are received, 95 are invested, 10 rupees are extra remaining. For month of March, this is 50, this is 60, and this value is 115. For month of April, this is 40, 65, and this here is 105. 45, 60, and this value here is 100. Again 45, 55, and this value here is 110.
So for the month of March, total amount received is 110 rupees. But share is of 115 rupees, तो extra invest करना पड़ेगा 5 rupees. So there will be a loss of 5 rupees. For month of April, total sum is 105 rupees. और 105 rupees ही invest करना है. So basically there is no profit and loss, zero मामला. Month of May, 45 plus 60 is 105. And 100 rupees to 5 rupees का profit is there. And last but not least, for the month of June, total amount is 100 rupees received. 110 rupees have to be invested. यानी कि 10 rupees extra have to be invested, so there will be a loss of 10 rupees. So question asking at which month end would the individual's loss from this decision due to share value changes be the most? The most loss will be in the month of June. Option D will be the answer. In the month of June, there will be maximum loss. ठीक है. Next question. An individual decides to sell. Same question. The second question stem is what can be the individual's greatest gain from this decision due to share value changes. Greatest gain कब हो रहा है हमारा? Greatest gain is in the month of February, that of rupees 10. So rupees 10 will be the answer. Option B in the month of February. Okay. So these are all the questions from this particular practice set of data interpretation. I believe सारे के सारे questions clear होंगे. कहीं भी कोई doubt रहता है तो make sure to comment out that out. And if you like the session, then make sure to hit the like button as well. If you have any queries or questions, feel free to comment about that and also give your feedback and appreciation in the comments. If you have any questions, feel free to ask those questions, and you can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYKT for any questions or queries. You can also join the WhatsApp channel Mathological for the same regard. That's all in this session. Bye bye. Take care and keep learning.